Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Bhavya. I know it's you, so it's okay. You can keep that name. It's okay. I just hope both the groups are here because I have discussed half with one of the groups, a little more with the second group. Okay, I'm just going to go over this once again quickly. We are doing algebra. We have done third exercise, जिसमें हमें variable की value substitute करके expression की value find out करनी थी. You were given the value of the variable and you had to just put that value of the variable in the expression and okay, find out the value of the expression itself. That exercise particularly was based on calculation similar to the one you did in exponents and powers. जैसी calculations आप exponents powers में करके आए थे उसी तरह की calculations आपके पास 12.3 में हैं. Now in 12.1 and 12.2 we will be learning about the terminology and addition subtraction of algebraic expressions. So I had discussed this constants and variable part with the students कि constants हमारे numbers को बोलते हैं हम और variables होंगे जो हमारे पास missing values हैं which change depending on the question और उनको हम ABC XYZ की help से represent करते हैं. इन दोनों के combination से अगर हम कोई statement बना लेते हैं, if we form or if we just combine the constants and the variables with the help of arithmetic operations, those combinations formed are called as algebraic expressions. So you could combine a constant and a variable using addition, multiplication, division and subtraction. यहाँ पे add हो रहे हैं, यहाँ पे multiply हो रहे हैं, हमारे constant और variable, इसमें division हो रही है और इसमें subtraction हो रही है. Whereas in the last part हमारे पास plus भी है, minus भी है, multiply भी है. So it is possible that multiple things could be done to the constants and variables. और अगर हमारे पास simply एक variable है या फिर सिर्फ एक constant है, उसको भी हम algebraic expression बोलते हैं. तो अगर मैंने simply x लिखा है, ये expression है. अगर मैंने simply 7 लिखा है, तो ये भी एक expression है. इसमें कुछ plus minus multiply divide नहीं हो रहा. The only thing is that. After this, we learn how to identify the terms of an algebraic expression. Terms are the parts of algebraic expression which are separated by addition and subtraction. तो आपके पास अगर कोई भी ऐसे combination है, जैसे ये last वाली example जो मैंने लिखी थी, जहां पे हमारे पास 5m multiply हो रहे हैं ये दोनों, फिर subtraction हो रही है, 2 और n multiplied है और 8 ऐड हो रहा है. तो प्लस हो रही है चीज, कुछ माइनस हो रही है, कुछ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. इन पूरे कॉम्बिनेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द टर्म्स. दिस इज एन एक्सप्रेशन और हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे. उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स. टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. और पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? जहां पे आपको प्लस या माइनस नजर आएगा वहां से उसको ब्रेक कर देना है. जैसे ही आपको एडिशन नजर आएगी दैट मींस नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया. अगर आपको माइनस नजर आ रहा है तो अगला पार्ट शुरू हो गया. तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. सबसे पहले हमें दिख रहा है 5m. जैसे ही अगला ये माइनस का साइन नजर आया मींस अगला पार्ट शुरू हो गया. 5m इज योर फर्स्ट पार्ट. माइनस से आपका अगला पार्ट शुरू हो रहा है. -2n ये इकट्ठा एक पार्ट है. फिर आपको प्लस नजर आया तो प्लस से आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा.
if you look closely at all these examples, let's just zoom in a bit. So these are the algebraic expressions that we have. अब कैसे हम इनके पार्ट्स करेंगे? अगर तो आपको प्लस माइनस नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है, अगर प्लस माइनस नजर आएगा तो पार्ट्स बनेंगे. अगर आपको प्लस माइनस नहीं नजर आ रहा तो वो एक्सप्रेशन ही टर्म है. जैसे यहां पे इन दिस केस नो प्लस नो माइनस, तो आपके पास क्या है? ओनली वन टर्म. ये अकेली है, इसके साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, सो दिस इज जस्ट वन टर्म. सेम वे इफ यू लुक एट दिस वैल्यू, इसके साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये भी एक ही है, अकेला है, ये एक ही टर्म है और पार्ट्स नहीं है. जहां पे प्लस माइनस नजर आएगा, इन दिस केस आपके पास दो वैल्यूज हैं जो प्लस हो रही हैं, x एंड 5. इस केस में a एंड -7. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, साइन कैरी करना है आपको. जैसे इंटीजर्स करते थे, इंटीजर्स में हम देखते हैं कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेस्ड ऑन उससे पहले क्या साइन आ रहा है. अगर किसी के आगे प्लस लगा है तो वो पॉजिटिव है. आगे मींस उससे पहले, बाद में नहीं, उसके पहले. और अगर किसी के पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो उस वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू बोलते थे. यहां पे भी वो चीज बहुत जरूरी है. अगर किसी के आगे प्लस लगा हुआ है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी. आप प्लस साइन लगा भी सकते हो, और अगर आप नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव मानी जाएगी. अगर किसी के आगे माइनस लगा है तो वो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है. माइनस को आप मिस नहीं कर सकते. I hope I'm making myself clear. If anyone has any question at this point, please ask. No, ma'am. Looking at the last two parts here, जो लास्ट के दो एक्सप्रेशंस हैं, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं. 5m है, फिर माइनस होनी शुरू हो गए 2n, तो यहाँ पे आपको एक और पार्ट मिल जाएगा, फिर प्लस हो रहा है. जितनी बार प्लस माइनस नजर आएगा आपको उतने पार्ट्स बनते जाएंगे. बस ये ध्यान में रखना है आपको. कितनी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, कितनी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, all of them will be the terms. The word that you will say is terms, not parts. एंड जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता, जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. क्योंकि उसमें सिर्फ कांस्टेंट है, हमारा नंबर ही है, वेरिएबल है ही नहीं, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म. आप यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करो, मैंने ये मिडल वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में सारी टर्म्स लिस्ट की हुई हैं, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जिसमें सिर्फ नंबर होगा, साथ वेरिएबल अटैच्ड नहीं है. दिस वन. ये कांस्टेंट टर्म्स है आपकी, बाकी सभी में कोई ना कोई वेरिएबल है. आफ्टर दिस, जब हमने एक्सप्रेशन के पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि एक्सप्रेशन किन चीजों को प्लस माइनस करके बना था, उसके बाद हम टर्म के पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस भव्या? मैम अगर उधर ऐसे लिखा हो p डिवाइडेड बाय 10, मैम वो डिवीजन का साइन हो बीच में, तो मैम हम p और 10 को दो अलग अलग टर्म्स मानेंगे? नहीं, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं ना हुआ. मैम जब प्लस माइनस होना है तभी टर्म्स डिवाइड होंगी. यस. जब प्लस माइनस होगा सिर्फ तब टर्म्स बनेंगी. आफ्टर दिस यू हैव फैक्टर्स ऑफ अ टर्म. जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की आपने टर्म्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप उस टर्म के फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. आई विल राइट डाउन द सेम एक्सप्रेशन, द वन आई हैड रिटन इन द बिगिनिंग. ये आपका एक्सप्रेशन है. इसकी अगर हम टर्म्स आइडेंटिफाई करें
तो टर्म्स कौन कौन सी बनेगी? एक टर्म बनेगी 5n, ये पहली टर्म है। सेकेंड टर्म है -2n और थर्ड टर्म है आपके पास +8। यहां तक पता चल गया टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपने? यस मैम। इसके Yes, बाद ma'am. हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ द टर्म, टर्म में जो कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड हैं, टर्म में जो भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई किए हुए हैं ना, वो उसके फैक्टर्स हैं। तो ये जो टर्म है 5m, इसमें 5 और m को मल्टीप्लाई किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेकेंड वन? -2 multiplied by n. तो ये इसके फैक्टर्स हैं। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म में सिर्फ कांस्टेंट ही है, तो आप उसको वैसे लिख दो। समटाइम्स जो ये माइनस वाली वैल्यू होती है, इसको हम ब्रेक करके भी लिख देते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जैसे -2 into n लिखा है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1, 2 और n। Both will be correct. I want you to look at the examples in this table. ये जो हमने टेबल यहाँ पे फॉर्म किया है, टर्म्स लिस्टेड हैं फर्स्ट कॉलम में, 4 टर्म्स लिखी हैं मैंने, और उनके सामने मैंने उनके फैक्टर्स लिखे हैं। तो फर्स्ट वन तो आपको नजर ही आ गई, 5m है, तो 5 into m हो जाएगा। फिर -2n है, वो -2 into n है, या फिर आप लिख सकते हो -1, 2 और n, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। यही बनेगा ना, -1 into 2 into n will be -2n। अब आपके पास यहां पे इस थर्ड पार्ट में a और b मल्टीप्लाइड हैं, तो फैक्टर्स क्या बन गए? a और b। जो लास्ट पार्ट है, इसमें ये जो माइनस लगा हुआ है ना, इसको आपको -1 की फॉर्म में लिखना है। In your notebooks, please write down one thing. Excuse me, मैम। Yes. मैम आपने पहले कहा था कि डिवीजन प्लस और माइनस में होती है, बट इसमें तो मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। I'm sorry, I didn't understand. मैम आपने कहा था कि डिवीजन प्लस और माइनस की होती है, बट इसमें मल्टीप्लाई की भी हो रही है। Which part are you referring to? मैम जो पहले आपने टेबल दिखाया था उसमें, हाँ जी। मैम उसमें से हमने माइनस और प्लस की डिवीजन की थी, जो टर्म्स अलग अलग की थी। हाँ जी। इसमें हमने जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसमें भी अलग किया। हम क्योंकि अब टर्म के फैक्टर्स लिख रहे हैं, जैसे आपको याद है आप फैक्टर ट्री बनाते थे, यस मैम। तो फैक्टर ट्री कैसे बनाते थे? ब्रेक करते थे ना फैक्टर्स को। यस मैम। तब तक ब्रेक करते जाना जब तक हम स्मॉलेस्ट वाले फैक्टर पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। आपके पास जब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के पार्ट्स करेंगे हम तो टर्म्स बन जाएंगी। टर्म्स कैसे बनती हैं? जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड होते हैं। पहले एक्सप्रेशन के पार्ट्स किए, फिर फैक्टर के पार्ट्स करने हैं। जब एक्सप्रेशन के पार्ट्स करने हैं तब आपको प्लस माइनस देखना है, लेकिन जब टर्म के पार्ट्स करने हैं, यहाँ पे आपने देखो बेटा लिखा हुआ है ऊपर मैंने, जब आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, यू आर लुकिंग फॉर द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच आर मल्टीप्लाइड। क्योंकि हम देखो कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर आप प्लस माइनस से ब्रेक करते हो, प्लस माइनस से सेपरेट करते हो, तो आपको टर्म्स मिलती हैं।
जब आपको टर्म्स मिल गई, अब आप उन टर्म्स को फर्दर ब्रेक करना चाहते हो, उसके भी पार्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे कि उस टर्म में आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है और कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है। जो नंबर्स नजर आएंगे उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट फैक्टर्स, और जो आपको वेरिएबल्स नजर आएंगे उनको हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर्स। Okay, ma'am. I'll take one more example. Let's just take an example from your book itself. आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे, उसमें क्वेश्चंस हैं। चलो हम यहाँ से एक पार्ट करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स टेक दिस वन। ये जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला। आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, दो चीजें करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करती हूँ, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दी टर्म्स, तो प्लस माइनस से ब्रेक करना है। तो पहले आपके पास आ जाएगा 1.2 AB, एक ये टर्म बन गई। सेकेंड टर्म विल बी -2.4 B, द थर्ड टर्म विल बी +3.6 A। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी बेटा। मैम इसमें ऐसे नहीं बनेगी 1.2 कॉमा ए बी? नहीं बेटा, ये पूरी टर्म है इकट्ठी। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर किरत। मैम ये 1.2 AB मैम आपने अभी 13.5 हाँ जी बोलो। 12.3 करा दिया आपने, अभी 12.3 कराई है ना यस मैम। 12.1 और 12.2 पड़ी है अभी। यस। मैम ये आपने अभी करा पॉइंट है कि 1 into 2 है? ये 1.2 है, यहाँ पे इंटू नहीं है। दिस इज द मैम डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है। जो कांस्टेंट है आपका वो डेसिमल नंबर है यहाँ पे। उस डेसिमल नंबर के साथ कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? ए बी, ये इकट्ठी एक टर्म है। जैसे ही माइनस आएगा ना, माइनस या प्लस आएगा, तब टर्म बननी है। तो यहां से टर्म बनेगी इस तरह से। टर्म के बाद आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसे बनी है। 1.2 था, साथ में आपके पास let's just write this in as a factor tree, maybe that should help you understand. Wait, इन्होंने दिया भी आपको ऐसी है कि आपको पहले फैक्टर ट्री बनाना है। तो सबसे पहले मुझे नजर आया 1.2 AB। जैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगी मेरे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। सब्ट्रैक्शन आई, इस चीज की सब्ट्रैक्शन थी, ये सेकेंड टर्म बन गई। फिर मेरे पास एडिशन आ गई तो मेरे पास थर्ड टर्म बन गई, ये 3 टर्म्स बन गई। इसके बाद मैं लिख सकती हूँ फैक्टर्स। टर्म्स के बनाने हैं 1.2 A और B। इसमें से आपको मिलेगा -2.4 और B। इसमें से आपको मिलेगा 3.6 और A। ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन के पार्ट्स मिले, टर्म्स बन गई। टर्म्स में जो आपको नंबर और वेरिएबल नजर आएंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे। Is this clear now? Ma'am, can you please re-explain? If you separate the parts of an expression, you will get terms. Terms identify करने के लिए आप क्या करोगे? Ma'am, factor tree. No बेटा, that's a way to write down your answer. अभी हमने डिस्कस किया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है। जहां पे प्लस या माइनस नजर आएगा वहां से जो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो टर्म्स हैं। तो एक्सप्रेशन में देखो प्लस माइनस क्या क्या हो रहा है। जैसे ये Ma'am, वाला एक्सप्रेशन है, 1.2. Ma'am, yes. इसकी टर्म्स बताओ कौन कौन सी हैं?
Ma'am, 5y. Ma'am, then we will write plus 3y2 स्क्वायर. square. इसके अब फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो. फैक्टर्स Ma'am, का मतलब 5. बेटा फैक्टर्स होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू बनती है, तो इसलिए हम Yes. मल्टीप्लिकेशन सेपरेट करेंगे अब. Okay. 5. And then we will write y. इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, Ma'am, 5 and y. और सेकेंड टर्म में Ma'am, 3 multiply y. Ma'am, and then ma'am, square of y. नॉट स्क्वायर ऑफ वाई. वाई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. पावर 2, अभी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए हैं. पावर 2 का मतलब जिसपे पावर लगी हुई है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है. सो दिस मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई. तो y और y क्या बन जाएंगे? To y square. If you have this one, let's take this one now. Y minus y cube. बताओ terms Ma'am, इसकी कौन we कौन will write. Ma'am, y and y cube माइनस साथ लेना है. minus y अब cube. बताओ इसके फैक्टर्स बनाओ. Ma'am, Minus y. Ma'am, only y. जब आपको कोई कांस्टेंट फैक्टर नहीं ना नजर आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो. y को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 1 से. What about this one? Ma'am, minus 1 y multiply. Ma'am, we will multiply y 3 times. That's right. Is it clear? Anyone with questions now? Anyone with questions? How to identify the terms? How to identify the factors? मैम ये -1 कैसे आया? बेटा जो माइनस है वो आपको वेरिएबल के साथ नहीं लगाना. जब माइनस आएगा आप -1 लिखोगे. द कांस्टेंट, इसमें नंबर नहीं ना. जब भी आपको नंबर नजर नहीं आएगा ना, टर्म में आपको कोई भी नंबर नजर नहीं आता, तो वहां पे 1 होगा. ओके मैम. जिस टर्म में आपको कोई भी नंबर नजर नहीं आएगा, उस टर्म में जो नंबर प्रेजेंट है वो 1 है. तो माइनस के बाद कोई नंबर नहीं नजर आया, इसलिए यहाँ पे -1 लिखेंगे. 1 से मल्टीप्लिकेशन हम इग्नोर कर देते हैं ना, इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं होता. बट जब हम उसको अलग करेंगे तब हम लिखेंगे. Is it clear? यस मैम. Yes, ma'am. Let's go back to the definitions. After you have learned how to identify the factors, जब आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो जब आपको टर्म में, बी वेरी केयरफुल, टर्म में जो नंबर प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? Constant. Look at the screen. What do we call the number present in the term? It is called numerical coefficient. numerical coefficient. Numerical coefficient. Look at the terms that I have listed. First मैंने लिखा 5m. इसमें नंबर क्या है? 5. तो 5 numerical coefficient हो जाएगा. Second one, -2n. -2. ab. 1. इसमें नंबर नहीं ना नजर आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे? 1. 1. Second, last one, -da. -1.
Second type is when you have coefficient of a variable. किसी भी टर्म में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखने के लिए वो बोल दें, तो इसके लिए जरूरी होगा कि वो किसका कोफिशिएंट बोल रहे हैं, कोई वेरिएबल बताया होगा उन्होंने. आई वुड लाइक यू टू टेक अ लुक एट द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ये चेक करो क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी आती हैं. यस You all know how to identify the terms, yes or no? Yes, ma'am. तो Yes, यहाँ पे ma'am. बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स. जिन टर्म्स में आपको एक्स नजर आ रहा है सिर्फ वो टर्म्स लिखनी है. अकेला एक्स, एक्स की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, अकेला एक्स होना चाहिए. Ma'am, first one. ये वाली. Ma'am, yes. और Ma'am, Second. ma'am, third one. मैम सेकंड और Ma'am, थर्ड second भी वैल्यू है. बोलो जरा, Ma'am, 8yx. साइन साथ में. Ma'am, minus 8yx. और Ma'am, x. Ma'am, in third part. फोर्थ पार्ट. Ma'am, ma'am, zx. फिफ्थ पार्ट. Ma'am, x. एक ये, इसमें x है और एक ये, दो मिल गई यहाँ पे. इसमें भी x है और इसमें भी x है. मैम मैम अब जैसे 6 पार्ट में x y और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसमें भी हम x को करेंगे. यस, x पे नहीं होना चाहिए कुछ. x के Okay, ऊपर ma'am. ही पावर होनी चाहिए, बाकी जिस पे मर्जी लगी हो. ओके मैम. मैम 6. दिस वन, इसमें x yes. नजर आ रहा है और एक ये, इसमें x नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, मैम इसमें, दोनों में नजर. मैम मैम सब पार्ट्स में ही है. सब पार्ट्स में है, उन्होंने दिए इस तरह से हैं. ओके, इसके साथ जरा ये बी पार्ट करो, टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर. अब मैम y की पावर 2 उठानी है. मैम सेकंड. फर्स्ट. दिस मैम वन. फर्स्ट. मैम मैम तीन yes, है. मैम second one. मैम एंड केयरफुल. थर्ड वन. मैम इसमें थर्ड वन में मैम थर्ड में 15xy स्क्वायर और 7y स्क्वायर. anyone who could not understand what we did, टर्म्स देखनी है जैसे उन्होंने कहा है. ए पार्ट में कहा था सिर्फ वो टर्म्स उठाओ जिनमें एक्स नजर आएगा, तो एक्स की अगर कोई पावर है आपने वो नहीं लेना. फिर मैम बी पार्ट में उन्होंने कहा वो वाली वैल्यूज लेनी है जिनमें वाई स्क्वायर है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, तो चलो हम इस पार्ट में लिखते हैं कि हमने कौन कौन सी टर्म्स आइडेंटिफाई की. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम. मैम माइनस का साइन तो हमने साथ में लेना ही है, अगर प्लस का साइन है वो भी हमने साथ में इंक्लूड करना है. अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही माना जाएगा. कोई साइन नहीं है मींस प्लस साइन है. वो पता है मैम, मैंने इसलिए पूछा था. हाँ जी, हाँ जी, वो बोलना भी जरूरी नहीं है. ओके मैम. Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, what is the coefficient of x? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग, कमिंग टू, बैक आ रहे हैं उस पे. हमने अभी टर्म्स आइडेंटिफाई की हैं जिनमें x था, तो मैं लिस्ट कर रही हूँ यहाँ पे. पहले वाई स्क्वायर एक्स, फिर -8yx, फिर एक अकेला x मिला, मैं पार्ट वाइज लिख रही हूँ. zx मिला, फिर x मिला, फिर xy मिला, एक 12xy स्क्वायर मिला, एक 7x था, फिर xy स्क्वायर था. ये जो मैंने ए पार्ट में आइडेंटिफाई किए हैं. Now I want to write down the coefficient of x. ये जो टर्म्स मैंने लिस्ट की हैं यहाँ पे ग्रीन से, इन टर्म्स में मुझे x का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है. सो सिंपल सा रूल है, जब आपको x का कोफिशिएंट लिखना है ना, टर्म में से x हटा दो, बाकी जो रह जाएगा वो लिख दो. मैम फर्स्ट में हम लिखेंगे y स्क्वायर. मैम सेकंड में -8y. -8y. इसमें मैम
मैम थर्ड में नहीं कुछ, मैम थर्ड में 1। यस, 1 वेरी गुड, वेरी गुड। जब आपको कुछ नहीं नजर आएगा तो क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 1 मैम। फोर्थ में मैम 1। Z मैम 1 Z नहीं आएगा? यू कुड राइट डाउन, वो सेम बात है, बोथ आर फाइन। ओके मैम। इसमें 1 रह जाएगा, इसमें y रह Yes. जाएगा, इसमें मैम 12 and y square. आई होप इट्स क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? Yes मैम। ठीक है, तो बी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। जब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है आपको, तो हम क्या करेंगे? टर्म में से वाई स्क्वायर डिलीट कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो लिख देंगे। ओके राइट? Along with this, when you are identifying your terms, you come across like or unlike terms. Terms जैसे like और unlike decimals थे, होते हैं ना, like decimals, like rational numbers, like fractions, unlike fractions. वैसे ही हमारे पास terms हैं, like या unlike। तो जिन terms में same variable है, same variable का मतलब वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो उनको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। भव्या, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेरी, लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। अगर आपकी टर्म्स में वेरिएबल्स और उनकी पावर एग्जैक्टली सेम है तो उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। अगर कुछ भी डिफरेंट हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया या पावर चेंज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया तो भी वो अनलाइक हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे आपके पास। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, उन तीनों में क्या वेरिएबल नजर आ रहा है आपको? x। X तो दीज आर लाइक टर्म्स। सेकेंड चेक करो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? स्क्वायर 2 and x to the power 2 सेकेंड, थर्ड पार्ट, x y and y x x और y ऑर्डर कुड बी डिफरेंट पर दोनों सेम है, x x y y। अब अनलाइक पे जाओ जरा, अनलाइक को चेक करो। इस पेयर में x x तो मैच हो गए, ये एक्स्ट्रा आ गया। मैम y एक्स्ट्रा। इसमें मैम मैच ही नहीं हुए। मैम मैम डिफरेंट लास्ट में मैम इसमें वो Powers- मैम power उसमें नहीं। पावर लगी हुई है। पता चल गया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लाइक अनलाइक टर्म्स? यस Yes, मैम। इसके बाद हमारी ब्रेक है। Yes, you will have your break. I would just like to discuss the definitions, then you can have your break by the time, just 5 minutes more. Okay? ये finish कर लेते हैं, फिर हमें exercise ही solve करनी है। This one is also actually very easy, very important. जब हम number of terms count कर लें, आपको terms identify करनी आ गई expression की, आपने terms identify कर ली। अगर आप count कर लो कि कितनी terms मिली आपको, एक्सप्रेशन में आपको कितनी टर्म्स मिली, तो आप एक्सप्रेशन को बोल सकते हो मोनोमियल अगर उसमें सिर्फ एक टर्म थी, बाइनोमियल अगर उसमें 2 टर्म्स थी, और ट्राइनोमियल अगर उसमें 3 टर्म्स थी। ओके मैम। देखो, अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, टर्म अकेली है, नथिंग इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू इट, तो उसको हम बोलेंगे वन टर्म। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इफ यू जस्ट टेक अ लुक, इनमें आगे इनके बाद बाद देखना है, पीछे देखना, पहले मत देखना, पीछे देखना। उनके उनके पीछे कुछ प्लस या माइनस करके आ रहा है। अगर आ रहा है तो और टर्म आएंगी, अगर नहीं आ रहा तो वो एक ही टर्म ही है बस।
मैम वो जैसे थर्ड वाले में आ रहा है -7z। नहीं नहीं, पीछे नहीं जाना, ये माइनस इसी के साथ है, ये माइनस इसका अपना है। मैम जैसे बाइनोमियल में बीच में कोई साइन डला हो। यस यस, माइनस के आगे पीछे चाहिए आपको कुछ, पहले भी कुछ होना चाहिए, बाद में भी कुछ होना चाहिए, तो दो चीजें होंगी वो। यस भव्या। मैम अगर लिखा हो मैम x z-7, मैम तो वो बायनोमियल होगा कि मोनोमियल होगा? यस, यू आर सेइंग z -7, यस मैम। ये बाइनोमियल है, दिस इज अ बाइनोमियल। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ओके मैम अगर Z7 माइनस लिखा होता तो? ऐसे नहीं होता, ये फॉर्म ही गलत है, इट इज इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन। आपको बताया था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा कांस्टेंट पहले आएगा, 7 माइनस तो वैसे ही नहीं लिखते हम, -7 लिखते हैं, और वेरिएबल हमेशा पीछे आता है नंबर के बाद। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, लिखा ही गलत है, ये फॉर्म ही गलत है। ओके मैम। Then you have trinomial where you will see 3 terms. ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ करो जरा। फर्स्ट पार्ट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कौन सी चीज है ये? मैम बाइनोमियल। बाइनोमियल। सेकंड वन, मोनोमियल। थर्ड वन, ट्राइनोमियल। फोर्थ। मम्मी हमारी 11 o'clock ब्रेक होती है। आई नो बेटा, I've asked for 5 minutes, just 1 more minute. ये करके आप चले जाओ। मोनोमियल। मोनो। ट्राइनोमियल। बाइनोमियल। बायनोमियल मोनोमियल। मोनोमियल। ट्राइनोमियल। बाइनोमियल। 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 ट्राइनोमियल। That's it. That will be all right. Bye ma'am. Thank God bless you. थैंक यू मैम। बाय मैम। you ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am. God bless you all.